मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब 23वीं आयत से बाब के आखिर तक यानी 34वीं आयत तक यीशु का इख्तियार क्या है? यीशु का इख्तियार। यीशु का इख्तियार। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब 23वीं आयत से जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदाबंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, ए कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को धांता और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। जब वो उस पार गदरिनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थीं कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे टूंड मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का गोल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूअरों के गोल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूअरों के अंदर चली गई और देखो सारा गोल करारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थीं बयान किया। और देखो सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारे सरहदों से बाहर चला जा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। आज का हवाला 2 वाक़या बताया जा रहा है। पहला वाक़या क्या है? तूफान को हुक्म किया, थम जा। थम जा तो ये आज का हवाले में नहीं होगा। क्या होगा? आज का हवाले में क्या बोला था? पानी को धांता और बड़ा अमन हो गया। धांता। और दूसरा वाक्या क्या है? मरकस की अंजील में बताता है क्या इस वाक्या को? मरकस की अंजील 5 बाब, वो एक आदमी है। लुका की अंजील 8वां बाब में देखें। लुका की अंजील 8वां बाब 26वीं आयत, 26, 20 और 6। लुका 8वां बाब 26वीं आयत में फिर वो गरसनियों के इलाके में जा पहुंचा जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द, एक लुका भी कह रहा है
مرکز کی بھی کہہ رہا ہے، ایک متی کہہ رہا ہے، دو تھا. ٹھیک ہے. اور مرکز کی عجیب میں پوچھتا ہے نا تیرا نام کیا ہے، تو کیا بتاتا ہے؟ ہاں، لشکر ہے. کیوں؟ بہت ہے. ٹھیک ہے. لوکا کے انجیل میں لشکر بدرو کو نکالنا ہے. اس کو نکالتے ہوئے بدرو نے درخواست کی ہے. کیا درخواست کی ہے؟ ہاں، اگر تو ہمیں نکالتا تو ہمیں سور کے اندر ڈال. پھر سور میں جانے کا اجازت دیا تو پھر کیا ہوا؟ جیل میں جا پڑے. ہاں. سور کتنے تھے؟ آج کے حوالے میں نہیں لکھا ہے، مرکز کے انجیل میں لکھا ہے. کتنے تھے؟ ہاں، سور کتنے سور تھے؟ 2000. ہاں، 2000. پاکستان میں سور تو ملتا نہیں ہے، لیکن دوسرے ملک میں سور کھاتے. سور کھاتے، غیر قوم والے سور کھاتے. سور چرانے کا مطلب ہے یہ غیر قوم کے لیے یہ تو کھانے کی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ غیر قوم کے علاقہ ہے، غیر قوم کے علاقہ ہے. غیر قوم کے علاقے میں سور پالتے ہیں تاکہ بیچے. کتنا نقصان ہوا؟ 2000 سور مر گئے. یوں سمجھو کہ 2000 بکرے مر گئے. کتنا نقصان ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہوا. ابھی 2000 سور مر گئے تو یہ سو ایک اور کوئی کام کرے گا اور نقصان ہوئے گا، مالی نقصان. یار 2000 بکرے مار گئے. بکرے تو نہیں ہے، سور ہے، لیکن اس کے عوض میں اندازہ لگاؤ. پاکستان میں تو سور حرام ہے، اس لیے یہاں تو کوئی پالنے والا ہے ہی نہیں ہے. لیکن غیر قوم کے علاقے میں یعنی انڈیا میں جائیں گے تو وہ گائے نہیں کھاتے، کیونکہ وہ گائے اس کے لیے تو دیوتا ہے، بھوت ہے. اس لیے سور کھاتے ہیں. تو وہ مہنگا ہوگا نا. میں انڈیا کا بھی گیا نہیں ہوں، مہنگا ہوگا. غالباً ایک بکرے کی طرح ہوگا. تو 2000 بکرا مر گیا. چروائے نے بولا سر جی یہاں سے نکل جاؤ، ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارا 2000 مر گئے. چرانے والے نے جا کے بولا ہے نا، ابھی اینجل بولا میں تو بتیاں معاف کرنے گئی تھی یا اس کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی. میں بولا پھر بھی لیٹ ہوئے نا، جلدی بھگاتے وقت سے پہلے سب چلا جاؤ. تو اپنے صفائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. وہ یہ صاحب نے وہ 2 شخص کو شفا دیتے ہوئے اجازت دے دیا سوروں کو چلا جاؤ، اور تو بدرو نے سوروں کو پانی میں جا کے ڈبا دیا، مر گیا. ہمارا کوئی غلطی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا صفائی کر رہا ہے تو سارا شہر آ کے بولتا ہے سر جی ہمارے علاقے سے چلے جاؤ. کیوں؟ 2 جان بچائے، 2 شخص کے جان بچائے، بدرو سے آزاد ہوئے. بے شک نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ موازنہ کر رہا ہے 2 آدمی کے جان
2000 सूअर से बेहतर है। समझ में आ रहा है? 2000 सूअर से बेहतर है। यीशु ये सिखा रहे, समझा रहे, एक आदमी के जान बचाना है, इतना कीमती है। मरकस की अंजिल में वो शिफा पा गया क्योंकि लोगों ने बोला यहाँ से चला जाओ, तो इसलिए कश्ती पर सवार होकर जाने लगे। वो कह रहे, खुदाबंद मुझे भी आपके साथ जाना है। खुदाबंद ने बोला अपने घर में जाओ, अपने इलाके में जाओ और मुनादी करो, जो आपके साथ हुआ है वो गवाही दो। तो कहता है वो डेकापोलिस में जाके उन्होंने चर्चा किया है, मुनादी की है, अपने जिंदगी में खुदाबंद को तजर्बा किया, वो गवाही देते। यीशु कश्ती में सवार होके जा रहे थे तो क्या कर रहा था? वो सो रहा था। मतलब यीशु को छुट्टी नहीं मिला। सबत के दिन शिफा दी, बदरू गिरफ्तार शख्स को शिफा दी, और शमौन पतरस के घर आया, सास को शिफा दी। शाम होने लगे तो सारे दुनिया आ गई, सबको शिफा दी, कुछ आराम करने के लिए। भाई इन लोगों को यहाँ छोड़ के आगे जाना है तो मैं जा सकता हूँ और ये नहीं आ सके, तरीका क्या है? कश्ती में सवार हुआ, चला गया, कश्ती नहीं मिला, वो क्या करेगा यार? समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ लोग दौड़ते हुए, झील के किनारे किनारे दौड़ते हुए आ जाता है। यीशु के पीछे इतना लोग आते हैं। फिर कुछ आराम करना चाह रहे, फिर क्या हुआ? अगर खुदाबंद छुट्टी करेगा तो क्या होगा? देख रहे हैं ना, खुदाबंद छुट्टी करेगा तो तूफान आ जाता है। खुदाबंद अब तक काम करता है। समझ में आ रहा है? कायनात को अभी चला रहे, अगर खुदाबंद छुट्टी करेगा तो सारा दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों? खुदाबंद सबत के दिन काम कर रहा है, सबत के दिन साथ काम कर रहा है, इसलिए खुदाबंद ने यूहन्ना के दिन में क्या फरमाया? मेरा बाप अब तक काम करता है, इसलिए मैं काम करता हूँ। अगर खुदाबंद काम नहीं करता तो ये सारा कायनात खत्म हो जाएगी। भाई ये दुनिया घूमता है, समझ में आ रहा है? दुनिया घूमता है, चांद भी घूमता है। चांद घूम के हर महीने में तब्दील हो जाता है, उसका शक्ल है एक ही शक्ल, लेकिन सूरज का धूप से चमक थोड़ा बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर छोटा हो जाता है। समझे? वो घूमते रहते, दुनिया के आसपास घूमते रहते। ये सारा सिस्टम है, वो सिस्टम ऑफ हो जाए तो खत्म हो जाता है। चूजे के लिए अंडे रखे हैं 22 अंडे, कल सुबह आया मशीन खराब हो गया। समझे? मशीन खराब हो गया, फिर क्या करता? कोशिश की ठीक करने के लिए, नहीं हुआ। फिर बाजार जाके मशीन लेने के लिए गए, दुकान इतना देर से खुलता है, 12 बजे, 12:15 बजे, 12:30 बजे मशीन लेकर आया दूसरा, फिर उसको सेटिंग किया, फिर अभी चलना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? खुदाबंद छुट्टी करेगा, दुनिया खत्म। लेकिन वो इंसान भी है, इसलिए थक जाता है,
सो रहे, तूफान आया, ए खुदाबंद, यीशु ने क्या बोला, ए काम इत्तका दो, डरते क्यों? डरता बहुत है। रात को कोई आवाज आ जाता है, कोई महसूस होता है, हे करके डर जाता है, सारी रात नींद में नहीं, नींद उड़ जाता है। डरते क्यों? खुदावन आज के कलाम में क्या किया? ढांढता, ढांढ सकने वाले ना ढांढ सकने वाले के फर्क क्या है? एक काम इत्तका दो, ईमान मजबूत होना चाहिए। डर गए, फंसते में नहीं रहूंगी, मैं घर जाऊंगी। और जीन की बात सुनाते हैं, चुनेलिया कहाँ है? वो हर वक्त वो किचन चला जाता है, पकाने का काम। हाँ ठीक है, लेकिन वो इतना डराते हैं और वो खुद डर भी जाते हैं। ऐसे फजूल बात कहानी सुनाते हैं। ईमान में मजबूत होना, खुदावन ने हुक्म फरमाया, लोग डर गए, हमारा नुकसान और हो जाए, इसलिए उसको मना कर यहाँ से हमारे सरहद से चला जाए। दुनिया के लोग अपने फायदा नुकसान को देखते हैं, यीशु जान बचाने की सोचते हैं। जान बचाने वाले बनोगे या माल बचाने वाले बनोगे? माल बचाने वाला कहेगा यीशु को, सर जी चला जाए। जान बचाने वाला क्या कहेंगे? वेलकम, यीशु को वेलकम करेंगे। आप अपने आंख को दुरुस्त करो कि माल पर होगा, दो मालिकों का खिदमत नहीं करेगा, बोला है ना यीशु ने। माल दौलत पर होगा, यीशु को कह रहा है चला जा। अगर जिसका ध्यान जान बचाने पर होगा तो वेलकम करेंगे। अपने निगाह, आंख दुरुस्त करने के लिए खुदावन से मदद मांगे, हमें जान बचाने की आंख दे, ना के माल बचाने वाले आंख। हकीकी जिंदगी की किताब को देखें, यीशु का इख्तियार 23वीं आयत से 27वीं आयत का पहला हिस्सा है। तूफान में जब शागिर्द अचानक तूफान में फंस जाते हैं तो वो यीशु को बचाने के लिए पुकारते हैं। वो उनसे सवाल करता है कि वो क्यों खौफ ज़दा हैं और उनका ईमान इतना कम क्यों है। और उनकी हैरत में यीशु हवा और लहरों को पुरस्कुन करता है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हम जिंदगी में तूफानों में फंस गए हैं और हम हैरान हो सकते हैं कि क्या खुदा हमारी परवाह भी करता है। हम इतने परेशान महसूस कर सकते हैं कि हम उसे पुकारते भी हैं, पुकारते भी नहीं। फिर भी शागिर्दों की तरह हम खुदाबंद को पुकार सकते हैं और तवक्का कर सकते हैं कि वो हमें किसी भी सूरत हाल से बचा सकता है। वो हर चीज़ पर, यहाँ तक कि हमारी जिंदगियों की छोटी सी छोटी तफसील पर भी खुद मुख्तार है। किसी भी तूफान में हम ईमान में उसे
पुकार, क्यों हंस रहे हो? तलब सही नहीं है, मैं जानता हूं। हम ईमान में उसे पुकार सकते हैं कि वो हमें बचा सकता है। अब फिलहाल किन तूफानों से गुजर रहे हैं, अपने ईमान में मजबूत हों। जब आप यीशु को इन हवा और लहरों को पुरस्कुन करते हुए देखते हैं जो आपको डर आती हैं। दूसरा टाइटल है 28वीं और 34वीं आयत तक, 28 से 34वीं, आज़ादी या आराम। यीशु दो आदमियों को बदरू कब्जे से शिफा देता है, लेकिन शहर के लोग उसे जाने के लिए कहते हैं। वो एक मौजे का तजर्बा करते हैं, लेकिन वो यीशु से खौफ ज़्यादा हैं और वो अपने दरमियान एक ताकतवर मौजा घर होने से ज़्यादा खंजीर के पूरे लेवर के नुकसान की परवाह करते हैं। आज भी बहुत से लोग इसी तरह तस्लीम करते हैं कि खुदा ताकतवर है, लेकिन जब वो महसूस करते हैं कि उनके आराम को खतरे हैं तो वो उससे गुरेज या यहाँ तक कि उसे रद्द कर देंगे। खुदा सबको आज़ादी से अपने पास आने की दावत देता है, लेकिन बहुत से लोग उसकी नजात को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आराम को बुत बनाते हैं। आइए हम अपने आराम को अपनी नजात की तारीफ करने से रोकने की इजाज़त ना दें, और आइए हम दुआ करें कि दूसरे भी ऐसा करें। कौन सी आराम की चीज़ें हैं जो लोग सबसे ज़्यादा छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं? खुदा की तारीफ करें उस नजात के लिए जो उसने आज़ादी से पेश की है, और दुआ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी नजात की बेपनाह कदर को पहचाने। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं, तू कादिर है। अरे खुदावन, हमें बरकत दे कि हमेशा खुदा की तरफ हमारा ध्यान लगे रहे और खुदा की पामर्श को अपनाने वाले बने, ना कि दुनिया के माल पर हमारा तवज्जो हो। और जान बचाने के लिए नुकसान उठाना पड़े तो ईमान से, खुशी से जान बचाने के काम करने के लिए मदद फरमा। आज के दिन के लिए बरकत चाहते हैं, सबको बरकत दे, ईमान में मजबूत कर, मेल मिलाप रहने की तौफीक दे और सेहत याबी तंदुरुस्त दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान वाला है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कर्जा को माफ कर, हम भी अपने कर्जा को माफ करते हैं, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, ये बादशाही खुदा खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, हिफाकत, रिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।